Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Gauranitai, Jayo Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Gurudev,
गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जो आज विश्राम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस समय जिसने भी आए हुए श्रोताओं और माताओं एवं बंधुओं को सभी लोग का हार्दिक धन्यवाद। मुख्य जजमान है हमारे राजीव रंजन जी, तो कहीं आसपास हैं तो मंच पर आएंगे। हरे कृष्ण। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पद आनाशृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजरभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्रवतो श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम शं नः मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्आर्यमाः शं नः इन्द्रो बृहस्पतिः शं नः विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तार अवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तच्चाहं योराहं वृणिमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तूर्णः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्गं जगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्यायर शांतिर अंतरिक्ष शांतिर पृथ्वी शांतिर अपः शांतिर वायुर शांतिर तेजस शांतिर लोक शांतिर ब्राह्मण शांतिर वैष्णव शांतिर शांतिरस्तु ध्रुतिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंद स्वस्ति नो वासुदेव विष्णुर्ददातु स्वस्ति नो नारायण नरो वै स्वस्ति नो पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु स्वस्ति नो विश्वक्षेण विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेश हरिर्ददातु स्वस्ति नो वैनतेयं हरिं स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुमतर भगवतर ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर ददातु। ओम स्वस्ति न इंद्रा वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्तारिष्ट अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु अनेन स्वस्तिकेन विश्वद्वस्तु। अतस्ते कुसुमपमेरकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ति नवगोपवधु विलासालि वितनोतु मङ्गलानि कृष्णाकरोतु कल्याणं कंसकुञ्जरकेसरी कालिन्दी जलकल्लोल कोलाहलकुतूहल माधव माधव वाची माधव माधव रते स्मरन्ति साधव सर्वकारेषु माधव लाभस्तेषं दयस्तेषं कुतस्तेषं पराभवम् एषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनं मङ्गलं ऋषिकेशाय मङ्गलाय तनो हरि विष्णुर्वच्चारमात्रेण कृष्णस्य स्मरणाद्वरे तस्य सामलं सर्वसंशयः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए भागवत भगवान की हरे कृष्णा। एक मुखारबिंद से बहुत सुंदर भगवान की लीला श्रवण किए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैतदेश्यता श्री राधे दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते दीक्षिता दीक्षितावका तदसदा शरद उदासये साधु जात सरसिरोदरा श्रीमुषादृशा शरदुदासये साधु जात सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने नतो नेह किं वदा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने हतो ने किं वदा विषजलापया व्यालराक्षसा वशमारुता वैद्युतानला विषजलापया राक्षसा
मारुता वेदुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदे न खलु गोपिका नन्दनो बाबा मानिल देना रान्तराधिकः विघ्न साथितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वताङ्कुले विघ्न साथितो विश्वगुप्तये सखौ देवा शाश्वताकुले विरचिता भयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया विरचिता भयं विश्वदूर्यते चरणमीयुषा शाश्वते भया करसरोरुहं कातकामदं शिरसि देना श्रीकरग्रहम् कातकामता शिरसि देना श्रीग्रहण व्रज जनातिह वीरयोषिता निज जनास्मया ध्वंसना स्मृमला व्रज जनातिह वीरयोषिता निज जशास्मया भास्वनात्मता भज सखे भव किंकरीष्मनो जलरुहाननं चा
इसमें प्रणत देहिना पाप कर्षणा तृणचरानुगा श्रीनिकेतनम् प्रणत देहिना पाप कर्षणा इसमें आवाज दो। तेन चरानुगम श्रीनिकेतनम् फणिफलार्पितम् ते पदाम्बुजा क्रीडुकुचेषु न क्रीन्दिरेक्षयम् फणिफलार्पितम् ते पदाम्बुजा क्रीडुकुचेषु न किञ्चिदेक्षणम् मधुरया गिरा फल्गुभाग्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण मधुरया गिरा वाग्भुवाक्यया बुधमनोज्ञया औज्ञायस्वनम् वेदिकरीमा ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वैराग्ययोद्भक्तिरसं प्रयत्नै अपायनं मामभीप्सुमन्दं कृपाम्बुधिर्परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय से गोपी गीत का पाठ किए थे। तो गोपी गीत जो है वो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का हृदय है। आप लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिएगा। तव तब आपके कथामृतम शब्दों का अमृत शब्दों का अमृत तप्त जीवनम भौतिक जगत में दुखियारियों का जीवन कभी भी बड़े बड़े चिंतकों द्वारा ईडितम वर्णित कल्मषापहम पापों को भगाने वाला श्रवण मंगलम सुनने पर आध्यात्मिक लाभ लेने वाला श्रीमद् आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण आततम संसार भर में विस्तीर्ण भुवि भौतिक जगत में गृणन्ति कीर्तन करते हैं तथा प्रसार करते हैं ये जो लोग भूरिदा अत्यंत उपकारी जना व्यक्ति। अनुवाद और तात्पर्य सुनेंगे। आपके शब्दों, ये गोपियां कह रही हैं इस श्लोक को, विशेष रूप से श्लोक भी श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहा गया है। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। तात्पर्य, राजा प्रतापरुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रतापरुद्र विनम्र भाव से वहां गए और उनके चरण चापने लगे। तब राजा ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 31वें अध्याय गोपी गीत सुनाया। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब कथामृतम से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वह भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन कर लिया। श्री चैतन्य चरितामृत में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है और श्रीला प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आज सबका स्वागत है। यह कथा का विश्राम दिवस है। मंच पर विराजमान श्री श्री गौरनिताई श्रीला प्रभुपाद जी और सभी उपस्थित संतगण वैष्णवगण जो कथा में भाग लेने श्रवण करने के लिए आए, जितने भी जनप्रतिनिधि आदि विशिष्ट जन हैं, जितने भी प्रभु जी लोग और माता जी लोग, आप सबके चरणों में प्रणाम अर्पण करते हैं। आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद कि आप लोग अपने कीमती समय को भगवान में लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। समय तो कीमती है मगर उसकी असली कीमत तभी है जब उस समय को हम भगवान में लगाएं। और इस तरीके से ये मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी अपने इस जीवन को, समय को भगवान हरि की चर्चा में जो अपने आप में एक परम पुनीत कार्य है उसमें आपने मुझको लगाया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, बहुत सुंदर उत्सव मनाए, बहुत सारे लोग उसमें भाग लिए, आनंद प्राप्त किए। श्री गिरिराज जी की पूजा का उत्सव मनाया। भगवान ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की और गिरिराज जी को वापस उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। समस्त ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। इधर इंद्र आए सुरभि गाय को लेके और भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगे। भगवान इंद्र के अपराधों को क्षमा कर दिए क्योंकि कुछ नुकसान तो हुआ नहीं था। 7 दिन 7 रात ऐसा मौका मिला कि उस गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान और उनके भक्त इतना निकटतम भगवान अपने भक्तों के साथ और भक्तगण भगवान के साथ नहीं रह पाते थे। और यशोदा रहती थी निकटतम मगर भगवान गोचारण के लिए चले जाते थे।
तो दिन भर यशोदा नहीं देख पाती थी, उसको शाम को, सुबह और रात को सेवा का मौका मिलता था। और जब घर से बाहर निकलते थे और गोधूली के समय रिटर्न करते थे, वापस लौटते थे, तब गोपियों को कृष्ण दर्शन का सौभाग्य मिलता था। दिन भर भगवान के सखाओं को मिलता था, मगर रात को यशोदा मैया सबको घर वापस भेज देती थी, ये कह के कि तुम लोग यहाँ रहोगे तो मेरा लाला सो नहीं पाएगा, तो घर वापस जाओ। तो सबको कुछ लिमिटेड टाइम में भगवान की सेवा मिलती थी, भगवान के दर्शन का अवसर मिलता था। मगर इंद्र तो अपनी तरफ से सेवा भाव से नहीं किए, वो अपराध की भावना से किए, भगवान से द्वेष की भावना से किए। मगर इंद्र के चलते ऐसी व्यवस्था हो गई कि 7 दिन 7 रात पूरा एकदम 2400 घंटे समस्त ब्रजवासी एक टक श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। तो भक्त खुश तो भगवान खुश। जब भगवान देखे हमारे सारे ब्रजवासियों को इंद्र ने खुश कर दिया, उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, उसका भाव ऐसा नहीं था कि ब्रजवासियों को प्रसन्न करना है, उसका भाव यह था कि ब्रजवासियों को दुखी करना है। मगर क्योंकि उसकी व्यवस्था से ब्रजवासी सुखी हो गए, इस वजह से भगवान इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दिए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी, हम सुने थे कि भगवान के सखा और बछड़ों की चोरी किए थे, तो 40 श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किए, बहुत सुंदर स्तुति की है। मगर भगवान ऐसे खड़े थे वहां पर, गोप वेश है, गोप है भगवान तो, और ब्रह्मा 4 मुख हैं उनके। और जब पहुंचे वहां पर अपराध की क्षमा मांगने के लिए, बार बार ब्रह्मा जी अपना माथा जमीन पे लगा लगा के प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। 1-2 बार नहीं, 7 बार प्रणाम किए। प्रणाम करके ऊपर देख के देखते हैं भगवान को कि क्षमा कर देंगे, मुस्कुरा के देख देंगे, समझ में आएगा कि खुश है हमसे। मगर भगवान तो मुस्कुरा के देखते नहीं। तब भगवान क्यों ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं करना चाहते थे? इंद्र ने तो भगवान और भक्तों को निकट ले आए, मगर ब्रह्मा जी भगवान को उनके भक्तों से दूर कर दिए। इसलिए ब्रह्मा के अपराध को भगवान ज्यादा माने इंद्र के अपराध से। बात ही नहीं की ब्रह्मा जी से, बल्कि भगवान के सारे सखा वहां पर देख रहे थे कि अरे हमारे कन्हैया से कोई 4 मुंह वाला आके बतिया रहा है, बड़ी देर से कुछ बोले जा रहे, कोई बोले, वो तो नहीं जान रहे थे ब्रह्मा जी है, तो बोल रहे थे अरे चौमुहा आया था, चौमुहा आया था। आज भी ब्रज में उस स्थान का नाम पड़ गया चौमुहा, 4 मुख वाला वहां आया था। अच्छा, इधर 7 दिन 7 रात छोटा सा 7 साल का बालक इतना बड़ा 7 कोस का पर्वत उठा लिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तब हुआ क्या, सारे ब्रजवासियों में एक मीटिंग हुई। गर्ग संहिता में सब वर्णन आता है। सारे ब्रजवासी गोपगण एक मीटिंग किए, एक ईष्ट गोष्ठी किए। ईष्ट देखिए, जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, संसार में सब मीटिंग करते हैं ना, कोई विशेष काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, उसके लिए मीटिंग किया जाता है। और जिस मीटिंग में भगवान को केंद्रित करके भगवान की सेवा के लिए जो मीटिंग की जाती है, तो उसको ईष्ट गोष्ठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईष्ट गोष्ठी। और बाकी मीटिंग्स को अनिष्ट गोष्ठी बोलते हैं, जिसमें ईश्वर नहीं है और यही भावना है, अरे इसको यहाँ से हटाओ, इसको ऐसे दुखी करो, इसको यहाँ से भगाओ, इसको ये करो, वो करो। किसी के अनिष्ट की कामना से अगर कोई गोष्ठी मीटिंग की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अनिष्ट गोष्ठी बोलेंगे। तो एक ईष्ट गोष्ठी हुई और उसमें वो कर रहे हैं, चुप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। वो गए हैं, राजीव जी गए हैं, उनको चुप कर रहे हैं। हाँ, करिए करिए, आप भी करिए। आज अंतिम दिवस है तो सब मूड में है कि ठीक है, माताओं में कम से कम एक गुण है कि वो शोर करते हैं, शोर शराबा ऐसे बोलते हैं, शोर शराबा मत करो। माताएं शोर करती हैं, बाकी शराब पीते हैं, ऐसे शोर शराबा दोनों ही मत कीजिए, ना शोर ना शराबा। हरि हरि बोलिए, हरे कृष्णा। तो एक ईष्ट गोष्ठी हुई और इसमें क्या बातचीत चल रही है। सारे के सारे गोप बोले कि नंद बाबा एक बात बताओ, भाई तुमसे तो थोड़ा सा भी वजन 7 दिन तुम उठा लो, ऐसा हो नहीं सकता। 7 दिन तुम थोड़ा सा भी वजन उठा के खड़े हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और तुम्हारा लाला 7 साल का इतना बड़ा पर्वत टांग के खड़ा हो गया, हमें संदेह है तुम्हारे लड़के के ऊपर। सच सच बताओ, तुम्हारे लड़के का कोई रहस्य होगा।
भाई क्या है ये, कोई शैतान है, कोई हैवान है, कोई देवता है, श्री भगवान है, क्या है बताओ। तो जब गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किए थे तो नंद महाराज को बोले थे कि देखो मैं कुछ बता रहा हूँ तुमको, सबको बताने वाली बात नहीं है कि गुणों में तुम्हारा लड़का जो है वो नारायण के ही समान है, मतलब साक्षात भगवान ही है। तो अब तो नंद महाराज फंस गए। सारे को बोले कि देखो तुमको हम जाति से निकाल देंगे, जाति से बाहर कर दिया जाएगा, अगर सच सच नहीं बताओगे तुम्हारे बेटे का क्या रहस्य है। तो नंद महाराज बताए कि देखो जब गर्गाचार्य आए थे कृष्ण का नामकरण करने के लिए तो मुझे बताए कि ये साक्षात भगवान है, और वृषभानु महाराज के यहाँ जो पुत्री जन्म ली है जिसका नाम है राधा, वो इसकी नित्य अर्धांगिनी है, इसकी आदि शक्ति है, और दोनों का भविष्य में विवाह होगा। अच्छा, गोप लोग ये बात तो नंद महाराज से सुन लिए, और सुनने के बाद क्या किए, अब पहुंचे वृषभानु महाराज। वृषभानु महाराज कौन है आप लोग जानते हैं? हरि हरि हरे कृष्णा। वो क्या चल क्या रहा है? हरी हरी हरी। कुछ कीर्तन ही करना। अच्छा 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 ठीक है। तो वृषभानु महाराज हैं श्रीमती राधा रानी के पिताजी। तो जो गोपगण हैं वो सारे के सारे गए अब वृषभानु महाराज के पास, बोले कि देखो नंद के छोरे पे हम लोगों को कुछ संशय है, कुछ तो गड़बड़ है। नंद का छोरा जो है हम लोगों के जैसा नहीं है। भाई हम गोपों के बीच में जन्म लिया है मगर हमारे से कुछ अलग है, और इतना शक्तिशाली कोई बड़ा देवता या भगवान है तो हम जैसे गोपों के घर में जन्म लिया, ये बात हमको हजम नहीं हो रही। बोले कि कुछ ना कुछ बात तो है। अच्छा, नंद महाराज बताए कि वो भगवान है, गर्गाचार्य नामकरण किए तो गोप बोले भैया ये बढ़िया रीति है, एक ही घर परिवार एक ही जाति के सब कुछ होते हुए तुम अपने बेटे का नामकरण करा लिए छिपके से, वाह जी वाह, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। देखिए आजकल तो लोग अपने उत्सवों को अकेले मनाना ज्यादा पसंद करते हैं, मगर पूर्व काल में घर का कोई उत्सव मनाते थे तो आसपास के जहां तहां के सारे लोग उस सेवा में भाग लेने लगते थे। हमारे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि पहले जमाने में गांव में अगर कोई यज्ञ आदि हुआ करता था, कोई अभिषेक, कोई पूजा, ऐसे कोई उत्सव होता था तो कोई सामग्री खरीदनी नहीं पड़ती थी, और गांव के लोग सब लोग ले आते थे और उस उत्सव को मनाते थे। इवन शादी ब्याह में ऐसा होता था कि गांव के लोगों में आपस में एक दूसरे में इतना प्रेम व्यवहार रहता था कि लोग एक दूसरे के घर में दिन रात लग के सेवा करके उत्सव को पूरा करा देते थे। अब आज से 10-20 साल बाद तो हम लोग इस सबको काल्पनिक समझेंगे, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण क्या? क्योंकि सब लोग अब अकेले अकेले अपने उत्सवों को मनाते हैं और किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। मगर पहले भारतीय संस्कृति में क्योंकि भगवान की कथा केंद्र में रहती थी, सुबह शाम लोग भगवान की कथा सुनते थे, गीता भागवत रामचरितमानस पढ़ते थे, तो इस कारण से आपस में लोगों में प्रेम बहुत रहता था। मगर अब ये चीज देखी नहीं जा रही। तो गोप लोग बोले कि बढ़िया रीति निकाले भैया, हम लोग सब एक ही समाज के हैं, अपने बेटे का नामकरण करा लिए, वो भी गर्गाचार्य जैसे बड़े आचार्य से, और हम लोगों को बताया भी नहीं, आज बता रहे हो 7 साल बाद। गए सीधा वृषभानु महाराज के पास, बोले देखो ऐसा ऐसा नंद बाबा बोल रहे हैं कि उनका लड़का तो भगवान है, मगर अगर भगवान है तो भगवान तो दरिद्र नारायण नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। हमें आपके ऊपर तो विश्वास है कि आपकी बेटी राधा साक्षात लक्ष्मी जी है, क्योंकि आपके घर का वैभव देख के समझ में आता है कि साक्षात लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। मगर नंद उतना रिच नहीं, इतना अमीर नहीं दिखाई देते, उनके यहाँ ऐसी धन समृद्धि नहीं है। तो बोले कि देखो ऐसा है कि हमें कुछ नंद महाराज की परीक्षा लेनी पड़ेगी, और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि पहले उनको समाज से हटा दो, और नहीं तो हम तुमको समाज से बाहर कर देंगे।
वृषभानु महाराज बोले बताओ तो भाई क्या समस्या है। बोले उनके बेटे को देखा है 7 साल का कैसे पर्वत उठा लिया। अरे नंद से तो थोड़ा सा वजन 100 किलो का सामान 7 दिन उठा सकता है नंद? नहीं उठा सकता। एक दिन उठाने को बोलो तो उसका हाथ पैर दुख जाएगा, बैठ जाएगा। वो खड़ा खड़ा बाएं हाथ की छोटी उंगली पे पर्वत उठा लिया। तो अब क्या योजना की? वृषभानु महाराज बताए कि देखो गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण करने के बाद यहाँ बरसाना भी आए थे और ये बताए कि मेरी जो लली है श्री राधा जो है ये श्री कृष्ण की नित्य अर्धांगिनी है, उनकी आदि शक्ति है, दोनों का भविष्य में विवाह होगा। तो राधा का पिता होने के नाते मैं गर्गाचार्य को ही बोला कि महाराज फिर आप ही विवाह करा दीजिए इनका। तो गर्गाचार्य बोले कि इनका विवाह मैं नहीं कराऊंगा, इनका विवाह साक्षात ब्रह्मा जी कराएंगे। तो अब इतना तो कंफर्म हुआ। बोले नहीं नहीं मगर नंद के धन को थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या योजना बनाए कि लड़की वाले के यहाँ से कुछ भेंट जाती है ना रिश्ता पक्का करने के लिए, तो बोले कि अपने घर से जितने आपके पास धन है उस हिसाब से मोतियों की माला आप भेजिए नंद के यहाँ और फिर देखते हैं कि वो रिटर्न में कितना देता है, पता चल जाएगा उसके पास कितना धन है। अब वृषभानु महाराज 1000 मोतियों की माला नंद महाराज के घर भेजे भेंट स्वरूप। और जो भेंट लेके गए थे वो बताए कि वृषभानु महाराज भेजे हैं श्री राधा रानी जो है आप ही बताए थे ना कि कृष्ण की नित्य संगिनी है, उनकी नित्य आदि शक्ति है, दोनों का विवाह होगा। तो विवाह के प्रस्ताव से भेंट लेके आए हैं, आप रिटर्न में भेंट दीजिए। अब तो नंद महाराज यशोदा माई के पास गए। बोले यशोदे तुम्हारे पास देखो जरा, इसके हिसाब से हम लोग के पास कुछ धन राशि है। अब यशोदा मैया बोली कि इतना तो हम लोग के पास नहीं है, और लड़की वाले के यहाँ से जितना आ जाए, ये आज के कल्चर की बात नहीं कर रहे, उस समय के हमारी संस्कृति की बात कर रहे हैं कि लड़की वाले के यहाँ से कुछ भेंट आ जाए तो लड़के वाला उससे यदि कम रिटर्न करेगा तो उसके लिए बहुत छोटी नीच बात हो जाएगी। लड़के वाला ज्यादा भेंट भेजता है तब तो वहां से कन्या लेंगे ना। अच्छा अब क्या हुआ, नंद महाराज सोचे, चिंता में पड़ गए, भाई अब मैं क्या करूं। तो नंद महाराज जो भेंट लेके आया था उसको वापस भेज दिए। बोले आप यहाँ पर ये छोड़ जाइए, अब हम लोग अपने से लेके आएंगे वृषभानु महाराज के घर। अब इधर नंद महाराज चिंता में है, तब तक भगवान श्री कृष्ण क्या किए, उन 1000 मोतियों की माला में से 100 मोतियों की माला ले जाके खेत में बखेर दिए। अब नंद महाराज वापस आए घर के भीतर, तब गिनने लगे कितनी माला थी। पहले 1000 थी, अब केवल 900 बची है। अब तो बड़े ही टेंशन में यशोदा से पूछे, इससे पूछे, कहाँ गई, 100 माला गायब हो गई। पहले 1000 पुराने के लिए था नहीं, अब उसमें भी 100 कम हो गई। तो पूछे कृष्ण से, भैया तुम्हारा कुछ काम है? तो भगवान बोले, बाबा हम लोग तो गोप लोग हैं, ग्वाले हैं, किसान हैं, तो हम तो खेती करना जानते हैं। मैं सोचा सफेद सफेद बीज है, ले जाके खेत में बो दिए। नंद महाराज सर पकड़ने लगे, बोले भाई बढ़िया लड़का मिला है हमको, इसका शादी वादी कुछ नहीं होने वाला। कितना बोले कि राधिका गोरी से और बिरजी की छोरी से है ना, भैया इसका विवाह क्या होगा। अच्छा तो नंद महाराज बोले कि चलो भैया खेत में लेके चलो, थोड़ा निकाल लेते हैं वापस मोती, और कम से कम उतना तो जुटाएंगे, फिर बाकी जुटाएंगे। इधर जब खेत की तरफ भगवान लेके गए तो क्या देखे कि वो सारे के सारे मोती बीज की तरह फूट के उनमें से पौधे निकल गए हैं, और उन पौधों पे मोती ही लग गए हैं। मोतियों की खेती भगवान करके दिखा दी है। अब तो 100 मोती लगाए थे और हजारों हजारों मोती वहां पर हो गए। नंद महाराज उस भेंट को इकट्ठा करके इधर वृषभानुपुर में बरसाना में भेजे, और इस तरीके से ये सिद्ध हुआ गोपों के बीच में कि हाँ ये साक्षात श्री हरि हैं और ये साक्षात उनकी आदि शक्ति श्री राधा है। अब बाद में भांडीरवन नाम के स्थान पे राधा कृष्ण का विवाह साक्षात ब्रह्मा जी कराए थे। जिन लोगों को झगड़ा हो कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था,
तो मथुरा मंडल में 84 कोस ब्रजमंडल में भांडीर वन नाम का स्थान है। क्या नाम का स्थान है? भांडीर वन। आप लोग गूगल पे, आजकल तो गूगल गुरु सबसे बढ़िया, गूगल पे ढूंढ लीजिए तुरंत भांडीर वन, तो वहां आपको फोटो वीडियो मिल जाएगी कि कैसे ब्रह्मा जी वहां पे राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराए थे। क्या हुआ, एक दिन की बात है कि नंद महाराज तो हर एकादशी को व्रत किया करते थे। द्वादशी पारण का कुछ समय होता है, सुबह सुबह भोर में उठे, सूर्योदय से पहले जाके यमुना में स्नान करने लगे। जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण जी जो होते हैं, तो वो नंद, उसके पार्षद नंद महाराज को लेके चले गए। अब इधर शोर मचा, भगवान श्री कृष्ण वरुण लोग जाके अपने पिता को छुड़ाने गए, तो नंद महाराज की आंखों के सामने वरुण जी श्री कृष्ण की पूजा किए, 16 उपचार से उनकी पूजा किए, अर्घ्य पाद्य आचमनम वस्त्र अलंकार सब कुछ अर्पण किए, धूप दीप नैवेद्य आदि सब अर्पण करके खूब बढ़िया से कृष्ण की पूजा किए। उसके बाद स्तुति किए, हाथ जोड़ के खड़े थे और पूरा जमीन में लौट के दंडवत प्रणाम कर दिए भगवान को। उनके लिए तो नॉर्मल सी बात थी, भाई भगवान की पूजा करते ही थे अपने लोक में, आज साक्षात भगवान आ गए तो कितना बढ़िया से पूजा करेंगे। मगर नंद महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा देवता वरुण मेरे बेटे की पूजा करता है। अब विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि ये है तो भगवान। ये एक आश्चर्य उन लोग के मन में हमेशा आज तक कभी कोई असुर आता था, पूतना या घसुर बकासुर कोई असुर आता था तो नंद महाराज यशोदा गोप लोग यही सोचते थे कि भगवान नारायण की कृपा से हमारा छोरा बच गया या ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे लड़के की रक्षा हो गई। ये मान ही नहीं पाते थे कि ये साक्षात भगवान है। मगर अब इतना दृढ़ विश्वास बढ़े जा रहा है। अब जब नंद महाराज आके समाचार सब लोगों को सुनाए कि मालूम है वरुण देव कृष्ण की पूजा कर रहे थे, इतना बड़ा देवता, इसको श्री भगवान करके संबोधित कर रहे थे। अब तो सारे के सारे गोपों के मन में कामना आई, मनोकामना। क्या कामना आई कि कृष्ण यदि तुम स्वयं भगवान हो, साक्षात भगवान हो, ईश्वर हो, वैकुंठ के ईश्वर हो, तो क्या हम लोगों को भी वैकुंठ का दर्शन करा दोगे? अब सारे के सारे गोप कृष्ण से प्रार्थना किए कि क्या तुम हमें वैकुंठ का दर्शन करा दोगे? और भगवान माथा पकड़ रहे हैं कि बताओ इन लोगों को, मैं वैकुंठ छोड़ के आया ब्रज में, क्योंकि ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा है। मैं वैकुंठ छोड़ के आया ब्रज में, ब्रज की धूली में लौटता हूँ, यहाँ की गोपियों का दूध पीता हूँ, गैया चराता हूँ, और ये लोग ब्रज छोड़ के वैकुंठ जाने की इच्छा करते हैं। तो बोले चलो ठीक है, मनोकामना तो पूरी करेंगे ही करेंगे। अपने भक्त की कोई कामना भगवान छोड़ दें। सत्यम विसत्यम अर्थितम अर्थितो नाम नेवार्थ दो यत पुनरर्थित यतः। सत्यम विसत्यम अर्थितम, कोई अगर अर्थी हो, कोई चाह रखे और भगवान का भजन करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान उसकी चाह पूरी ना करे। अनेक उदाहरण है, एक दो उदाहरण नहीं। ध्रुव महाराज तो तपस्या किए और जब भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव महाराज को भगवान बोले कुछ वरदान मांगो। ध्रुव महाराज बोले कि स्वामी कृतार्थोस्मिन वरम न याचे। हे स्वामी, मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था। स्थान अभिलाषी तपसी से तो मैं एक बहुत ऊंचा स्थान चाहता था, एक बहुत ऊंचा पद चाहता था। अब बहुत ऊंचा पद चाहिए, कुछ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बोले हाँ, तपसी स्थित तो मैं कठोर तपस्या में लगा था और चाहता था बहुत ऊंचा स्थान। मिल गया कौन? तो हम प्राप्तवान मुनि देव गुह्यम, और मिल गए हमको आप। भगवान बोले ध्रुव, तुमको घाटा हो गया ना, तुम चाहते थे ऊंचा पद और मिल गया मैं। तो बोले नहीं नहीं, काचम विचिन्वनपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे था, आप रत्न स्वरूप मुझको प्राप्त हो गए। भाई कांच का टुकड़ा आप हाथ में लेंगे, क्या सुख देगा बताइए? अगर आप हाथ में कांच का टुकड़ा लेते हैं, टुकड़ा कांच है, कांच का पीस है, टूट गया, हाथ में लीजिए और मुट्ठी कस के बंद कीजिए, सुख देगा या दुख देगा? कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। और व्यक्त रूप में मंच पर हमारे सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में
मंच पर विराजमान इस भागवत कथा के मुख्य वक्ता ध्रुव नारायण प्रभु जी, मंच पर विराजमान सभी महात्मागण, हमारे सभी श्रद्धालुगण, भक्तिमती माता एवं बहनों एवं बाहर से जितने भी अतिथि लोग आए हुए हैं, सभी को मैं इस श्यामनगर की धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सिद्धार्थ प्रभु जी जो कि लगभग 30 साल से इस्कॉन दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पे कीर्तन डिपार्टमेंट के हेड हैं। हरे कृष्ण। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम। तो मैं क्या बताऊं, आप सब लोग सच में ये बताते हम भी किसी से कम नहीं। तो मुझे लग रहा है अब मिथिलावासी भी ये संकल्प कर लिए, अब जो है जब दुनिया देश विदेश में प्रभुपाद भक्त बना सकते हैं, भागवत गीता पढ़ा सकते हैं, तो आप सबके बीच में व्यासपीठ पर विराजमान हिज गिरीश ध्रुव नारायण प्रभु आप सबको 7 दिन तक अमर कथा, ये कौन सी कथा है, और इनको ग्रहण किए, इनको अपने आप हृदय में उतारे। तो मैं आप सब से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी जो बताएं आप सब उस वाणी को जो अपने हृदय में उतारते हुए आप सब हरि नाम संकीर्तन का है जप कीजिए। ध्रुव नारायण प्रभु ये दिल्ली के रहने वाले हैं, इनका जन्म जो है दिल्ली में, वहां से ये इस गांव में, जो गांव में कभी भी हम लोग भी नहीं आना चाहते, हम यहाँ पर पैदा हुए फिर भी हम दिल्ली छोड़ के इधर आना नहीं चाहते। तब मैं हार गया हूँ, तुम लोग जीत गए हो, लेकिन मैं ध्रुव नारायण प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये इधर आके और ऐसे भक्तिमय बनाने वाले सिर्फ ध्रुव नारायण प्रभु है, इनके बहुत योग्य है, योगदान है आप सबके ऊपर और बहुत कृपा है आप सबके ऊपर। साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे आते रहिए, मैं प्रभु जी से यही प्रार्थना करूंगा, ऐसे आते रहिए और भक्तिमय सबको जो है बनाते रहिए, सबको भक्त बनाते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सिद्धार्थ प्रभु हमारे से वरिष्ठ हैं, कम से कम 25 साल पहले से ये बहुत पुराने ब्रह्मचारी, और जितने भी आप लोग यहाँ भक्त देख रहे हैं जो कंठी तिलक वाले हैं सारे भक्त, तो इन्होंने ही गाँव गाँव घूम घूम के प्रचार करके इन सबको भक्त बनाया। हरी 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 वो ये ध्रुव नारायण प्रभु की बहुत महानता है, सच में मैं नहीं बनाया हूँ, इन्हीं की कृपा है और आगे भी इन्हीं की कृपा रहेंगे। और मैं बस सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूँ, अगर ध्रुव नारायण प्रभु के हैं तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। पुजारी डिपार्टमेंट से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, 5-10 मिनट और बैठ जाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबको भूख भी लग रही है और मुझे पता है और समय भी ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरा गांव में जाने का कोई विचार नहीं था पहले, लेकिन इन्होंने मुझे जैसे बताया ना, जन्माष्टमी से पहले बोला था कि चलो आपको मिथिला गांव में ले चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, यज्ञ करेंगे और अभिषेक भी कर देंगे। तो जन्माष्टमी बीता तो जन्माष्टमी मेरी बहुत सेवा होती है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनको प्रीचिंग का भी रहता है मेरा और पुजारी की सेवा भी रहती है। बट मैं जब यहाँ पर आया, मैं जब इनका देखा कि इन्होंने इतने सारे भक्त बना दिए तो मैं देख के हैरान रह गया। मैं कभी सोचा हम एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन कभी मैं इनको बहुत ही नॉर्मल समझता था। भाई ये नॉर्मल नहीं है इंसान, ये वास्तव में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं। और ये जो कृपा है ना, वास्तव में ये कृपा इनकी नहीं है, ये कृपा इनके गुरुदेव की है। इस होलीनेस राधा गोविंद महाराज की कृपा हरि बोल, क्योंकि उनका इतना बड़ा आशीर्वाद है ना। अब पीछे मुझे बता रहे थे
मैं वो एक भक्त का नाम नहीं ले रहा, मैंने कहा वो कथा करता है इतना पैसा लेता है, मैंने कहा तुम भी करोगे तो तुम भी ले लो, कितना कमा लोगे। कह रहा है मैं गुरुजी के पास गया था तो गुरुजी बोले थे कथा चल रही है, मैंने कहा हाँ बहुत कथा चल रही है, इधर भी हो रही है, तो सब जगह बताया। तो गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और कृपा बोली कथा करते रहो। हरि बोल। तो कह रहा यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जो पैसा है वो कुछ समय के लिए रहता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो गुरु जी का आशीर्वाद होता है वो वास्तव में हमेशा रहता है। तो गुरु जी का जो आशीर्वाद मिला है ना, उन्हीं का ही वास्तव में ये प्रचार है। हरि बोल। तो मैं इनके चरणों में बहुत अपराध भी करता हूँ और मैं दंडवत माफी भी मांगता हूँ और दंडवत प्रणाम भी करता हूँ इनको कि मुझे क्षमा करे अगर मैंने कोई अपराध किया आपके प्रति। आज आपका ये भव्य दर्शन देख के और भव्य प्रचार देख के मैं बहुत खुश हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे समक्ष देव हरि प्रभु जी पूरे भारत में हरि नाम संकीर्तन के प्रचार करते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बहुत सुंदर प्रभु जी सबको भागवत कथा भी श्रवण कराते हैं और प्रभु जी पूरे इंडिया में हर एक जगह पे हरि नाम के प्रचार करते हैं। तो प्रभु से निवेदन है कि हम सभी के समक्ष आए हैं और कुछ हम सभी को समझाएं। हरे ये स्वयं से कथाकार हैं, वो गुजरात के क्षेत्र में बहुत जगह इनका कथा होता रहता है, मगर यहाँ मिथिला की भूमि में आए कथा सुनने के लिए। 2 शब्द बोलेंगे। हरे कृष्ण। आप सभी पुनः एक बार बोलिए हरे कृष्ण। वास्तव में हृदय एकदम भरा भरा सा है कि पवित्र मिथिला की धरती पर मेरे प्रिय मित्र हिज ग्रेस ध्रुव नारायण प्रभु जी की सुंदर कथा को श्रवण करने मिला और बहुत समय से इच्छा थी कि उनके साथ में जाऊं और उनसे कुछ कथा सुनूं। बहुत बार हमने ब्रज में भी प्रयास किया लेकिन बहुत व्यस्त वो भी थे हम भी थे, लेकिन आज जानकी मैया की कृपा हुई और उनके इस धाम में उनके इस तीर्थ में क्षेत्र में हमें कथा सुनने का अवसर मिला और 7 दिन मैंने कथा सुना। हर दिन में प्रभु जी को कुछ ना कुछ कहता था और बड़े नम्रता से वो सुनते थे कि ऐसा था, ये था, वो था, और हर दिन में कथा को बहुत आनंद से मतलब बहुत अच्छे से अनुभव किया कि इतना अच्छा कथा वो कहते हैं। तब मुझे जैसे प्रभु जी कह रहे थे हमारे बंधु गनाई प्रभु कि महाराज जी का आशीर्वाद है, तो वास्तव में गुरु जी के आशीर्वाद के वो भाजन है, पिता वही पुत्र है। तो महाराज जी जैसे भागवत कहते हैं, जिस शैली से कहते हैं उसी शैली को उन्होंने कंटिन्यू किया है। सुंदर भागवत के श्लोकों को बोलना बिना संगीत के, सरल भावना से, लोग जनहित के लिए, और भागवत बोल के किसी प्रकार का कुछ लेने की भावना न रखना, केवल देने की भावना रखना, और हर प्रकार की असुविधाओं को एक्सेप्ट कर लेना। हालांकि उनका जन्म शहर में हुआ है, शरीर में असुविधाओं के कारण कष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो गांव-गांव में चलकर यहाँ भागवत को बोल रहे हैं, गुरु जी के आदेश को पालन कर रहे हैं और खूब आनंद आ रहा है। और ऐसा क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में हर गांव में वो कथा करेंगे और इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी को वो प्रसारित करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि गुरु जी का पूरा आशीर्वाद उनको है। तो मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि पुनः कभी ऐसा अवसर हमें दे और भागवत भगवान की उनके माध्यम से हम कुछ श्रवण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम सबको आपके यहाँ मतलब आमंत्रित किए। हरे आप सब मिथिला वासियों को भी हमारा प्रणाम। 7 दिन में अगर कुछ हमारे व्यवहार में त्रुटि रही हो तो क्षमा करिएगा। हरे हरे कृष्णा। एक्चुअली हिंदी मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन टूटा फूटा तो मैं कोशिश करूंगा। आप सब हरे कृष्णा, तो एक बार सब हाथ एक साथ उठा के बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। हरि प्रभु से निवेदन है कि वो आए और कुछ अनुमोदन करें। सत्य है प्रभु जी को आप लोग जानते हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है इन श्री राधा गजेंद्र बिहारी, बोले श्री राधा गजेंद्र बिहारी की। तो प्रभु जी कुछ हम सभी के समक्ष अनुमोदन करेंगे। हरे कृष्ण। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे अंदर तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी ये विशेष कृपा है हमारे ध्रुव नारायण प्रभु जी की, जो हम लोगों को ऐसा मौका देते हैं श्रवण करने का और कार्यक्रमों को आयोजित करने का। प्रभु जी हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी जब इनको किसी तरह का हम लोग जब भी आमंत्रित करते हैं तो ये हमें ये करते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 शब्द कहूँगा कि जो यहाँ पर की जा रही है, तो मेरा एक ही प्रश्न आप लोगों से है कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है? कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है तो वो चाहता है कि सबसे बड़ी वस्तु मैं प्राप्त करूं। तो मेरा जो भी श्रोता लोग हैं या हमारे मंच पर हैं तो उसका एक आंसर देंगे। बहुत सिंपल है कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है? शास्त्रों के अनुसार हम उसको प्रमाणित करेंगे कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है। तो प्रभु जी का एक कहना है कि जो सबसे बड़ी वस्तु जो है ये गोलोक का प्रेम धन है, जो भगवान कृष्ण जिस लोक में रहते हैं उसका है। तो कृष्ण भक्ति के अनुसार ये बताया गया है, लेकिन रामायण के अनुसार बताया गया है, रामायण में बताई गई है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारारु लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वस्तु, उससे भी बड़ी और उससे भी बड़ी और सबसे बड़ी तो क्या है? संत समागम। जो अभी हम लोग पिछले 1 सप्ताह से 7वां दिन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संत समागम। अनेक अनेक जगहों से संत लोग आए हैं और साथ साथ जो आसपास के भी लोग हैं तो वो सब भी इसमें, तो और यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है। तो सबसे बड़ा जो है जो कार्य जो है ये देने का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और ये विशेष कृपा महाराज जी का है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा महाराज जी के बारे में जान पाया हूँ। यदि कुछ गलती हो तो क्षमा करेंगे महाराज जी। जैसे महाराज जी जो हैं, मतलब जिनका जन्मभूमि जो है इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के नाम से ये है, तो वहाँ पर एक बहुत ही सबसे प्रसिद्ध जगह चांदनी चौक, तो महाराज जी का जन्मभूमि वहाँ पर है। और बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति इनकी बहुत गहरी निष्ठा थी, और शुरू से ही इस तरह का जो इनका ये था। तो इन्होंने जैसे भी हो अपना मतलब ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, और ग्रेजुएशन करने के बाद ये फिर मतलब इनका है कि इस्कॉन में पिछले 15 साल से 15 वर्षों से इस्कॉन में निष्काम भाव से रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं वहाँ का। और महाराज जी का स्वयं जो है जो विग्रह है उनका नाम राधा दामोदर जी है, तो उनको प्रतिदिन महाराज जी अपने हाथों से उसकी श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, और उनको इस तरह का ये है। और महाराज जी की कथा जो है मतलब पूरे इंडिया में हर जगह होती रहती है, जिसमें यूपी में है, एमपी में है, दिल्ली में है, और ऑनलाइन भागवत कथा के माध्यम से भी, जैसे इनका बताया कुशेश्वर स्थान, हिरनी, सुंभा, खटौलिया, बलनी, सहोदरी, टेंगराही, सहसान, पुखराम, मतलब इस तरह से काफी सारे हैं। फिर आगे नेक्स्ट आता है मधुबनी में, तो मधुबनी में कथा जो है यहाँ पर होती है। और खासकर एक महाराज जी का चैनल है जो ध्रुव नारायण दास के नाम से है, तो यूट्यूब पर जब इसको सर्च करेंगे तो वहाँ महाराज जी की जितनी भी कथाएं वगैरह होती है, तो उन सब का हरे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी विमल प्रभु जी हम सभी लोग समक्ष बोलेंगे। इतना अच्छा, इतना सुंदर प्रोग्राम राजीव जी ने करवाया, इसके लिए हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ध्रुव नारायण प्रभु जी जो इस जगह पर पधार के धर्म की 7 दिन तक गंगा बहा दिए, इसकी हम लोग बहुत बहुत इनको हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। So okay,
For the last 7 days I've been here. For the last 7 days I've been here. इसका आवाज ठीक कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो नाइजीरिया वाले जो हमारे प्रभु जी बोल रहे हैं, पिछले 7 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। I'm really happy to have spent my 7 days here in Bihar. मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ पर अपने 7 दिन गुजार के। हरि बोल। I want to thank all the attendees of this program, those who came to attend the event. They were very prompt. They came every day. The first day there were few, and I was thinking, is this all? And then by the day, the numbers were increasing, and I'm really happy that they turned out for this program. तो जितने भी श्रोता हैं तो कह रहे हैं कि जब मैं पहले दिन आया था देखा बहुत कम लोग थे, तो मुझे लगा बस इतने ही लोग हैं, मगर जैसे जैसे दिन बीते और भक्तों की संख्या इतनी बढ़ी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भारत में लोग कथा सुनने के लिए इतने इंटरेस्ट लेते हैं। And the inhabitants of the village also, they are very friendly. और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो लोग बहुत मित्रवत व्यवहार किए, इससे वो बहुत प्रसन्न है। हरि बोल। आप सबके लिए हरि बोल। And also one thing I observed very carefully is that he is a very expert manager. अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक चीज मैंने और नोटिस की कि राजीव रंजन जी एक बहुत दक्ष मैनेजर हैं। Because I observed that he pays attention to details. He's drawing attention. Fix this. He's a very competent manager. उनको ये चीज़ पसंद आई कि वो एक एक छोटी छोटी बात को बहुत ध्यान से देखते हैं कि इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसलिए वो उनके मैनेजमेंट को बहुत लाइक किया। And finally, I want to thank the speaker himself. He is representing Veda Vyas, His Grace Devanarayan Prabhu. Haven't come here, and he is carrying on the legacy of his spiritual master. उसके बाद ये मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं कि यहाँ पर मैं वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। We are very, very proud of him. इनको मेरे ऊपर बहुत गर्व है। His Grace Devanarayan Prabhu के, Srila Prabhupada के। और हमें इनके ऊपर बहुत गर्व है कि विदेश में जन्म लिए जहाँ सब प्रकार का पापाचार होता है और इतना पवित्र जीवन जी रहे हैं और खुद अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम सबको हमारा प्रेरणा स्रोत है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि उस जगह पर जन्म लेके, ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेके, ऐसे एटमॉस्फेयर में रह के, ऐसे लोगों के बीच में रह के ये अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिए, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। Okay, Vishnu, I was speaking that we are very proud of you because you being born in such a nation where people are doing all kind of sinful activities, and you yourself are a big inspiration for all of us. You are a very great inspiration for all of us, that being born in such a nation, in such a family, in such an atmosphere, then also you have dedicated your life in the service of the Lord, and you please bless all of us that we can take true inspiration from you and we can dedicate selfless service to the Supreme Lord. हरे कृष्ण। अकुन प्रभु जी से निवेदन है कि वो आए और बहुत। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो भी भागवत में का आयोजन करता है, जो भागवत कहता है, जो भागवत सुनते हैं और मिथिला आते हैं तो जानकी जी के पास में रहते हैं, तो इनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो कहा गया है, बिंदु जी लिखते हैं कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कहते हैं ढोलक वाले बजाइए ना। तो कहते हैं कि कभी नंददास कभी राम जी के पास रहा और मिथिले में रहुना मिथिले में रहुना मिथिले में रहुना मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह
विजय भूमि है। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहो ना ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना। रहत रहत किछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाए हो। रहत रहत किछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाए हो। अवध नगरिया के पावन सपनों में याद न आए हो। अवध नगरिया के पावन सपनों में याद न आई हो। राम जी को कहते हैं आपको मिथिला में इतना मन लग जाएगा कि सपने में भी अयोध्या को याद नहीं करेंगे। अवध नगरिया के पावन सपनों में याद न आए हो। अवध नगरिया के पावन सपनों में याद न आए। सुन बतिया बहु लखन लाल कहीं से भी हो जाए कहुना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा कहो ना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। मिथिला में के बहुत फायदा होगा। पहला फायदा, रोज सवेरे उठन मल के इतर से नहवाइब हो। रोज सवेरे उठन मल के इतर से नहवाइब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर चेहरा चम चम चमकायब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत न बोली तन को, झूठ कहत न बोली तन को, मौका दे हो ना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा कहो ना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। दूसरा फायदा, निज नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। निज नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। बाज मुख बढ़ जाए सुनसाली सरहज के काली हो। बाज मुख बढ़ जाए सुनसाली सरहज के काली। बार बार हम करबन हो रहा हो। बार बार हम करबन हो रहा आलो के चूल्हे होना ए बहुना
कमला बिमला दूध मटी में झिझरी रोज खिलायब हो। कमला बिमला दूध मटी में झिझरी रोज खिलायब हो। कमला बिमला दूध मटी में झिझरी रोज खिलायब हो। कमला बिमला दूध मटी में झिझरी रोज खिलाए हो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाया हो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए। पवन देव से करगन हो रहा हो। पवन देव से करगन हो रहा हौले हौले बहुला ए बहुला मीठी बहुला ए बहुला यही मीठी बहुला। जवने सुखवा ससुरारी में, जवने सुखवा ससुरारी में, जवने सुखवा ससुरारी में, जवने सुखवा ससुरारी में, जवने सुखवा कहूला ए बहुला मीठी बहुला ए बहुला मीठी बहुला। अंतिम निवेदन हमर निहोरा रघुनंदन से माने हरियाणा माने हो। हमर निहोरा रघुनंदन से माने आना माने हो। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने हो। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने हो। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने हो।